Yes, come on, Mr. That's the light on. Okay. Everyone sit down. Sit down. Okay, the pin drop silence starts from now. Whom we are seeing on the stage? Yes, he is real. It is Saeed Ahmad Saab, the international motivational speaker, who has been giving motivational speech at all the schools across India, who has been training lakhs of people across thousands of cities. He is finally here on the stage of Ali Public School and Ali PU College. We are lucky to have his presence here. So let's give a big round of applause to welcome him. He is actually the charger and the booster who is charging the teachers, students, parents, everyone. So let us listen to him. Before that, just for a minute, I would like to have a clap from Yasir. Let me invite Yasir on stage. And sir, please be seated. Please sit and enjoy the clap of our school and madrasa student. As I mentioned, pin drop silent from now till the last minute where sir speaks, and no one will go outside. Those who are outside will never come inside. The rule stands. Yes, yes, yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Jazakallah khairan for that great qiraat. So I invite sir on stage, and I will just need a minute to fix this mic case.
Hello, Assalamu alaikum. It's my pleasure to introduce today's speaker. So, Janab Saeed Ahmad Saab. He is basically from Pune, Maharashtra. So around 600 to 700 kilometers from here. So he has come very far to give us the speech, to share his knowledge with us. So he is basically from Pune. He was a government employee. He was working as a librarian. Do you know the work of librarian? The head of a library. So it is a high position next to the level of principal. So he could have enjoyed his government job with a salary of more than 1.5 to 2 lakhs per month. But he sacrificed that job. He had a passion to do the social service, to enhance the skills of students, parents and teachers. So he has been traveling all across India, even abroad, for the social service, to develop the personality of the students and the parents community, to uplift the level of this community. So he had that passion, so he has started with that struggle of upskilling himself and giving the service to the society. So it is our privilege to have him here as a resource person, as an expert in the upskilling of the students. So let's all listen to him carefully. Say inshallah. Okay, with that brief introduction, let me hand over the mic to sir and let's listen from him to the maximum. So let's give a big round of applause to our sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो रोज़ जज़ा का मालिक है। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। उस रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद इस अली पब्लिक स्कूल के तमाम ट्रस्टियान, प्रिंसिपल्स, जूनियर कॉलेज, हाई स्कूल के ज़िम्मेदार, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आप लोगों के साथ आज इंटरेक्शन करने का, आप लोगों से रूबरू करने का मौका दिया। तो आज हम जो बात करेंगे, अपना मकाम पैदा कर, क्रिएट योर ओन स्टेटस, डिज़ाइन योर ओन फ्यूचर। तो अल्लाह ने हमको दुनिया में भेजा और भेजने के बाद हमारी एक पहचान दी। व्हाट इज पर्सनालिटी? व्यक्तित्व का विकास। तो पर्सनालिटी किसे कहते हैं? मतलब पर्सनालिटी मीन्स पहचान। तो एक बेसिक पहचान हमारी क्या है? नाम से है ना? नाम से पहचान है।
वालिद के नाम से है, वालदा के नाम से है, ख़ानदान के नाम से है, फ़िरक़े के नाम से है, हिंदू से है, मुसलमान से है। मुसलमान के घर में पैदा हुआ मुसलमान हो गया, हिंदू के घर में पैदा होता तो हिंदू होता। तो ये पहचान जो उनको मिली है वो ट्रेडिशनली मिली है, विरासत में मिली है। बोल के थे कि ऊपर अल्लाह को ने मुसलमानों से बनाना, बोले थे नहीं, मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। अब फिर मैं जो मुसलमान क्या है समझ में आया तो पता चला कि मुझे तो आई एम सो लकी कि मैं बतौर मोमिन पैदा हुआ, है ना, है ना, आया ना। हाँ। तो मुसलमान के पैदा हुआ तो ये आई एम सो लकी, ठीक है। तो शुरुआत कैसे नहीं अपनी पहचान बनाने की, इक़रा पढ़ो, पढ़ना। तो हर दौर में रब्बुल आलमीन ने इंसान को उसकी पहचान बताने के लिए, उसकी पहचान बताने के लिए इल्हामी किताबें नाज़िल की। कितनी, कौन कौन सी? हाँ, सब पता है आपको, है ना। उनको समझाने के लिए पैगंबरों को भेजा। पढ़ो मतलब सीखो। तो हम सीखते कैसा है, कौन बोलेगा? हम सीखते कैसा है? अरे भाई सीखते कैसा है? लर्निंग प्रोसेस क्या है? जो 10th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, वो बताएं, कोई भी बता सकता है। हम सीखते कैसे हैं? कैसे करते हैं? नहीं, पढ़ने से तो ठीक है, पढ़ते कैसे हैं? मेहनत कैसे करते हैं? क्या? अरे भाई खुद सीखते हैं ना, तो सीखते कैसे हैं? व्हाट इज द लर्निंग प्रोसेस? माइंड से, माइंड से सीखते हैं। माइंड तक बात पहुंचती कैसा है? समझते कैसा है? हाँ हाँ, क्या बोले, कौन बोला? देख को, बिल्कुल सही, जोरदार क्लैपिंग इनके लिए। देख को सीखते हैं, देखना मतलब देखना, देखने से सीखते हैं। और दूसरा, एक तो गया देख को, नहीं, एक हो गया देख कर, दूसरा सुनकर, बिल्कुल सुनकर, जोरदार क्लैपिंग। देखकर और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सीखते ऐसा से देखकर सुनकर। बगैर देखे बगैर सुने के सीख सकते क्या? हाँ, सुबह से शाम तक जो दिखता, सुबह से शाम तक जो सुनते, वही सीखते। सीखना। और जिनको देखकर सुनकर जो सीखते हैं वही दिमाग समझता है। समझना। अब जो तुम जबान बोलते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं, पैदा होने के साथ नर्स किताब ला के दी क्या, पढ़ो। कैसा सीखे? सुनकर और देखकर। तो बहुत कुछ सीखते रहते हैं। क्लास में भी मिस पढ़ाते रहते हैं, तो सीखते कैसा? देखेंगे, सुनेंगे। क्या क्या बंद करके सीखते हैं? कान बंद करके सीखते हैं। हाँ, तो सक्सेस यहीं से शुरू होता है, लर्निंग प्रोसेस। देखना और देखो, रब्बुल आलमीन 756 आयतों में कहता है, क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम सुनते नहीं? अल्लाह का हुक्म है सीखने के लिए। आंखें खुली, कान खुले, और जो जिस तरह से हम सुनते हैं, देखते हैं, वही तरह का हमारा बर्ताव, एटीट्यूड, बिहेवियर बनता है। सुनना और देखो, मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? बचपन से आपकी अम्मी अब्बा आपको सुनाते रहते, आप सुनते रहते। घर के बड़े बुजुर्ग भी आपको सुनाते रहते, अंकल, चाचा, मामू, फूफू, सब बड़े लोग आपको सुनाते रहते, आप सुनते रहते। कभी कभी मोहल्ले के लोग भी आके आपको सुनाते रहते, बड़े, आप सुनते रहते। क्लास में भी टीचर रोज आपको सुनाते रहते, आप सुनते रहते। ये जितने भी सुनाने वाले हैं, सबकी यही कंप्लेंट है, सुनते नहीं।
माँ हमेशा यही बोलती, पोटी सुनती नहीं, पोता सुनता नहीं। सुनना तो आप अभी सुन रहे ना, आपको मुझे सुन रहे ना? चलो सुनने का गेम खेलते हैं। सुन रहे हैं आप? देखो अल्लाह ताला बोलता है सही सुनना, सही देखना। तो आप सही देख रहे हैं और सही सुन रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो गेम खेलते हैं। खेलेंगे गेम? गेम ध्यान से सुनो पहले। मेरा हाथ यहाँ रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी। पहले सुन के लो। मेरा हाथ यहाँ रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी। हाथ हटेगा, क्लैपिंग बंद। मेरा हाथ यहाँ रहेगा, क्लैपिंग होगी। हाथ हटेगा, स्टॉप। मेरा हाथ यहाँ रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी। हाथ हटेगा, क्लैपिंग। समझ में आया? मेरा हाथ जोरदार क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा। समझ में आया? और एक बार बोलूं? जरूरत नहीं है? तैयार? रेडी? अब देखो कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं। रेडी मतलब रेडी होने मांगता है ना, एनर्जी के साथ जोरदार क्लैपिंग होना है। तैयार? स्टार्ट। मैं 5 बार बोला मेरा हाथ यहाँ रहेगा। मैं क्या बोला था? मेरा हाथ यहाँ रहेगा, क्लैपिंग होनी चाहिए। हाथ हटेगा, क्लैपिंग बंद। मैं तो हाथ यहाँ रखा था। आंख रहेगी भी अंधे, कान रहेगी भी बहरे। इसीलिए अल्लाह ताला बोलता है क्या तुम सुनते नहीं, क्या तुम देखते नहीं? आप ऐसा ही सुनते, ऐसा ही देखते। तो सीखेंगे क्या? समझ में बात? हम कितने लापरवाह हैं। स्मार्ट बनने के लिए सही सुनना और सही देखने वाला बनना पड़ता है। सही सुनना और फिर एक बार करें। मेरा हाथ यहाँ रहेगा, जोरदार क्लैपिंग होगी। हाथ हटेगा, क्लैपिंग अभी मालूम पड़ेगा। रेडी? तैयार? लेकिन कुछ लोग बजा दिए। तैयार? नजर तेज। रेडी? एक्यूरेट होना चाहिए। तैयार? रेडी? बहुत अच्छे। क्लासिक। वाह बहुत खूब। तैयार? आपकी नजर, एक मिनट साइलेंस। स्मार्ट बनने के लिए नजर का तेज होना जरूरी है। अब क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, हाथ में बल्ला है, गेंद आ रही है, नजर कहाँ रहनी चाहिए? गेंद पर या फेंकने वाले पर? अगर जिसकी नजर गेंद पर रहेगी तब दिमाग चलेगा और दिमाग इंस्ट्रक्शन देगा। ताकत का इस्तेमाल नहीं है, वहां दिमाग का इस्तेमाल है। एक मिसाल आपस में सुनने के लिए प्यास लगती है। ये एक्चुअली में ध्यान दो बात, जो अच्छा लिसनर नहीं होता अल्लाह उसको पसंद नहीं करता। कुरान कहता है कि तुम सुनते नहीं सुनते।
इसीलिए शरारतें होती हैं। जिसमें प्यास होती है वो सुनता है, जिसमें प्यास नहीं होती वो नहीं सुनता। अगर आपको दिमाग उन चीजों को कभी नहीं भूलता जिनको वो समझता है, और जब दिमाग समझता है तो कभी नहीं भूलता। कई लोग स्टडीज भी ध्यान से सुनते नहीं है क्लास में, जो आपके साथ क्लास चल रही है, कई लोग नहीं सुनते क्योंकि हेलो आप नहीं सुन रहे हैं, पूरा आंखें मेरी तरफ है ना। ये सक्सेस की यहाँ से शुरू होती है। हम क्लास में भी इधर उधर देखते रहते हैं क्योंकि हम अच्छे लिसनर नहीं हैं। इसकी आदत कहाँ से डालनी पड़ेगी? अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो उसकी सारी शुरुआत परसेंटेज से नहीं होती, फीसद से नहीं होती, समझने से होती है। समझना, वरना लोग नंबर का गेम करके नंबर हासिल करने को सक्सेस समझ रहे हैं। नंबर तो है जरूरी, ठीक है। हर आदमी 90 ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। हर आदमी 40 नहीं ले सकता। कोई 40 लेगा, कोई 50 लेगा, कोई 70 लेगा, कोई 90 लेगा। तो ये डिफरेंस, इसका मतलब 90 लेने वाला हो गया स्कॉलर और 40% 35% लेने वाला हो गया वीक। गलत। हर एक का समझने का लेवल अलग है। समझना तो वो समझने की कैपेसिटी कैसे इंप्रूव करें? अब यहाँ 9, 10, 12 भी है ना, 10 तक है, 10 तक है, 11th भी है, 12th नहीं है, कोई बात नहीं। तो खासकर 5th से लेकर 11th तक है। ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। 5th से लेकर 12th तक जो सिलेबस होता है, जो आप पढ़ते हैं, याद रखें, 5th के बाद एक मैच्योरिटी आती है, वहां संजीदगी आना चाहिए। बच्चा बन के भी बहुत कुछ सीखते हैं। आज आप बहुत कुछ गेम्स भी खेलेंगे, आपके पास, आपके साथ खेलेंगे, है ना। तो 5th से लेकर 12th तक जो हमको पढ़ाया जाता है, सिर्फ आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से सुनना कैसा, ध्यान से देखना कैसा? पर्सनालिटी मीन्स कलेक्शन ऑफ हैबिट्स। ये हैबिट्स होती है, अच्छी आदत, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। तो इसकी प्रैक्टिस कहां से होती है? अपनी माँ को सुनना। माँ जब आपसे बात करती है तो उनको देखकर सुनना, है ना। आपके फादर आपसे बात करते हैं तो उनको देखकर सुनना। और की ऑफ द सक्सेस लिसनिंग पावर है। आप सुनेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, थॉट बनेगी, प्रोसेस हो, आप स्मार्ट बनेंगे, नॉलेज आएगा। अल्लाह ताला कहता है कि तुम देखते नहीं, कि तुम सुनते नहीं, कि तुम अकल से काम नहीं लेते। तो सबसे बड़ा एजुकेशन किताब से नहीं होता। किताब जिन्होंने हमारे लिए लिखी है, बुक्स जिन्होंने हमारे लिए लिखी हैं, वो भी गौर और फिक्र करने वाले थे। सिलेबस किसने बनाया? उन लोगों ने बनाया जो अल्लाह के उस हुक्म का पालन किया, अल्लाह के हुक्म को माना, देखा, गौर और फिक्र किया और अपने एक्सपीरियंस को बुक की शक्ल में लिखा। वो बुक्स हमारे पास आ गए। अब बुक्स पे हम जब पढ़ते हैं, क्लास में समझाते हैं, मिस आपको समझाते हैं तो मिस एक्सप्लेन करती हैं, आपको पहले समझाते हैं, सुनाते हैं, और उसके बाद हम बुक्स पढ़ते हैं। तो उसमें जब गौर और फिक्र करती हैं, वहां से फिर हम इंटेलेक्चुअल बनते हैं। तो किताबें इसीलिए अहम होती हैं, जिन लोगों ने हमारे लिए बुक्स लिखे हैं उन्होंने अपना तजुर्बा लिखा है। तो आपके पास भी तजुर्बा है। कहां से? सुनेंगे, देखेंगे तो उसमें से नई चीज निकलेगी, बिटवीन द लाइन समझना। तो दिमाग भी जिन चीजों को समझता है वो कभी नहीं भूलता, रटी हुई चीज भूल जाते हैं।
सीखने के लिए, गौर फिक्र करने के लिए सवाल चाहिए। जैसा आज हमने सुबह टीचर के साथ बात की, सवाल होगा तो आप सही, आपके पास सवाल होगा तो ध्यान से सुनेंगे, जवाब ढूंढने के लिए सुनेंगे और देखेंगे। तो अभी सवाल क्या है भाई? मुझे अच्छे नंबर लेना है, मुझे कामयाब होना है, ये डिग्री हासिल करना है। डिग्री तो टिकट है, मुझे अच्छा इंसान बनना है। तो पहचान मेरी नाम से भी है। असल पहचान मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं वो इकरा, पढ़ने से बढ़ेगी। पढ़ने से पहले गौर व फिक्र करना, फिर पढ़ना। क्या तुम पढ़ते नहीं? पढ़ो अपने रब के नाम से, है ना, जिसने इंसान को लिखना सिखाया। तो उससे पहले का प्रोसेस है कंसंट्रेशन करना। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अभी भी कई लोगों में लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। उनका बॉडी बैठा हुआ रहता है, उनमें सिंसियर है ही नहीं वो। उसकी वजह क्या? वो अपनी माँ को बराबर नहीं सुनते, वो हुक्म की नाफरमानी करते हैं। क्या तुम सुनते नहीं, क्या तुम देखते नहीं? अल्लाह बार बार इसीलिए तो कहता है तो सुनना और देखना, यहाँ से शुरुआत होती है। तो हु आई एम, व्हाट आई एम, ये कॉमन क्वेश्चन है। अब आप में इतनी मैच्योरिटी आ गई है तो पहले सुनने के लिए प्यास कैसे बढ़ेगी? मैं कैसा, मैं क्यों, मैं किस लिए, मैं ऐसे ही, है ना। तो शुरुआत चलो करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो सुनना, देखना। आपको मालूम है सुनने की जो कैपेसिटी है, दो चीजें मैंने बताया, लिसनिंग एंड साइट, लिसनिंग एंड सीइंग। आपको पता है अब बार बार मैं यही कह रहा हूं, सुनो और देखो। अब उनका क्या भाई, जो सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, जो ब्लाइंड है, जो बहरे हैं। तो अल्लाह ताला, क्या तुम सुनते नहीं, तो क्या तुम गौर नहीं करते? तो अल्लाह ताला नाइंसाफी करता है ऐसे लोगों के साथ। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। अगर किसी को कुछ कम देता है तो बदले में बहुत कुछ देता है। समझने के लिए सिर्फ सुनना और देखना काफी नहीं है, उसके लिए हवा से खमसा, उसके लिए सेंस। हाउ मेनी सेंस? हाउ मेनी सेंस? 57? 8? एक मिनट, खड़े होकर बोलो, कौन बोलेगा 5? कौन बोल रहा है? जल्दी बोलो भाई। हाँ, कितने सेंस है? बिल्कुल सही, ये सही आंसर है। देयर आर 5 सेंस, है ना। कौन कौन से हैं? 2 तो बता दिया मैंने, लिसनिंग एंड साइट। नंबर 3 है एक मिनट, बहुत ध्यान से आपको बेसिक चीज समझ जाना है। आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझने की कोशिश करो। 2 तो बोल दिया मैंने। देयर आर 5 सेंस, 1 लिसनिंग एंड साइट, नंबर 3 हो गया ना, 2 तो हो गया ना, सुनना और देखना। एक मिनट, शोर नहीं करना। जिसको आता है वो हाथ उठाकर बोलेगा, बैठकर आवाज नहीं करेगा। बोलो। नहीं, थिंकिंग नहीं। ऐसे 1 मिनट, कोई किसी को प्राउंड नहीं करेगा, कोई टीचर भी प्राउंड नहीं करेंगे। फीलिंग नो। हाउ मेनी सेंस? 5 सेंस। समझना, हैबिट। 2 तो बोल दिया मैंने, रिमेनिंग 3 कौन से हैं? अब यहाँ से बारी आती है। देखो, ये इंटरेक्शन है, तकरीर नहीं है। हाउ मेनी सेंस? हाउ मेनी सेंस? 5 सेंस है। कौन से? 2 तो बोल दिया मैं, रिमेनिंग 3 बोलना है।
अपनी जगह पे बैठ जाओ। मैं आऊंगा, कौन हाथ उठाएगा उससे पूछेंगे। आप बोलेंगे कौन सी क्लास में आप? 10th में। हाँ, प्राइमरी 3 सेंस कौन से हैं? 2 तो हो गए भाई, लिसनिंग एंड साइट। टच बिल्कुल सही, छूना, स्किन, ये हो गया तीसरा। और चौथा कौन बोलेगा? टंग। ध्यान से सुनो, चौथा क्या है? टंग। फिर स्मेल, नोज, स्मेल, सूंघना। भाई मेरे, ये बेसिक चीज है, सुनो। ये 5 सेंस को समझना। आज की क्लास आपके लिए रिमाइंडिंग है या याद दिलाने के लिए, खासकर बच्चे बैठे नीचे बैठे, आपके कान खुले रखिए। ये 5 चीजें अगर किसके पास सलामत हैं, इसमें सफाई तो सोचों में सफाई, इसमें गंदगी तो सोचों में गंदगी। फिनिश। डिग्रियां लेने से कुछ नहीं होता, ये डिग्रियां तो टिकट है। रट्टा मार के पोपट की तरह, ध्यान से सुने, पोपट की तरह रट कर एग्जाम देना और नंबर लेना ये सक्सेस नहीं है। खुद को, कुरान कहता है खुद को खुद ही संवारना है। हम खुद के खुद शिल्पकार हैं, तो खुद को संवारने के लिए ये 5 सेंस, सुनना, देखना, नोज, नाक,